ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲੀਨ ਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਫਸਟ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ CBI ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਅਰਨਡ ਇਟ ਐਂਡ ਹੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਇਟ, ਤੇ ਮੰਗ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ CBI ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਇਨ ਇਟ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਵਰਜਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਰਪਟ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਜੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੂਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ? ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜਨਤਾ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਨਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਰਨਗੇ। ਸਬੂਤ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਊ ਆ ਉੱਥੇ ਡਿਊ ਆ। CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੇ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿ ਬਈ ਨੋਰਮਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਜੋਕ। ਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਹੈਵ 5 ਮੋਰ NRI ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਕੋਰਟਸ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਹੋਰ 5 ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ NRIs ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੈਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦਾ, NRI ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ NRI ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਇਕ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੀਨ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਹੋਮ ਸਟੇਟਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਡ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ 5 ਕੋਰਟ, ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ 5 ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਿਊਜ ਜੰਪ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਨੰਬਰ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ 5 ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਸਟੈਪ ਇਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਸਟੈਪ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵਲੀ ਉਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ 100 ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ 10 ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕੋਰਟ ਬਣਾਤੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ। Sir, Punjab and Haryana courts have directed central government to consider the issue of conversion of Punjab University into Central University. So what this formal conversion is all about? A university becomes a formally a central university. It gets certain privileges. It gets certain access to funds for research and development. And the hiring process is more nationwide rather than state based. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ best talent comes to that university. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ EMPLOYEES ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ EMPLOYEES ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਦੇ ਗੈਟ ਪੇਡ ਟਾਈਮਲੀ, ਦੇਅਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर separatist leader, Kashmiri separatist leader Yasin Malik. What do you think about the same? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੋਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ? ਬਟ ਦੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਕਮਿਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਿਡਰ। उन्होंने अपने सारे गुनाह भी कबूल किए हैं, that whatever he has done, he has accepted all those things and quick decision should be taken. And other leaders also, जो बाकी लीडर जिन्होंने कश्मीर के अंदर, चाहे वो कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड था या अदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी या ISI से पथरावबाजी या कश्मीर की जो पूरी इंटायर प्रोग्रेस को रोक रखा था, उन सब के ऊपर स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और सज़ा जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देंगे, आई थिंक ही डिज़र्व्स दैट। चाहे वो डेथ पेनल्टी है, चाहे वो आजीवन कारावास है, ऐसा नहीं है कि वो बंदा डिजर्व नहीं करता है, और ये एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। Sir, India to be one of the associate member of 34 nation combined military force at Bahrain, how this cooperation will play a crucial role in future? देखो, ये जो यूक्रेन वॉर हुई है, रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना की जो असर्टिवनेस या हेजोमेनिक माइंडसेट, जो अग्रेसिव माइंडसेट समझ में आया है, सो US, इंडिया, जापान एंड अदर important countries have become very very proactive. So they are trying to create new set of basically associations and allies who can work together to defend their, चाहे वो trade routes है। इंडिया 2008 से ही इंडियन नेवी इंडिपेंडेंटली स्विस कैनाल और अदर ट्रेड रूट्स पे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है, चाहे वो पायरेट्स हैं, चाहे वो जो कमर्शियल शिप्स हैं, जो समुद्री डाकू जिनको बोलते हैं, उनके अगेंस्ट इंडियन नेवी हैज़ प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू लॉट ऑफ कंट्रीज। सो इंडियन नेवी से सोमालियन पायरेट्स या दूसरे जो हैं समुद्र डाकू, वो थर थर कांपते हैं। तो बट इट्स अ ह्यूज एक्सरसाइज, ह्यूज एफर्ट। जब 34 कंट्रीज मिलके इसमें काम करेंगी, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डूइंग द सर्वेलेंस, इट मेक्स सर्वेलेंस मोर इफेक्टिव।
और एक आपका एक न्यू सेट ऑफ कंट्रीज़ के साथ आपका एक और एक साझी विचारधारा बनती है, जो फ्यूचर में जब भी डिप्लोमेटिक टाइज, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आती है तो वो सारी चीज़ें आपके काम आती हैं। कल को आपने परमानेंट मेंबरशिप के लिए जाना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या और इम्पोर्टेंट सीट्स हैं, जब आप उनके साथ मिलकर काम कर रहे होते हो, ये कंट्री टू कंट्री टाइज, पीपल टू पीपल टाइज इंप्रूव करने में हेल्प करता है और एक ओवरऑल ग्लोबल सिक्योरिटी और जो ट्रेड रूट्स हैं उनको और सिक्योर करेगा। तो मेरे को लगता है कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव और भारत को ऐसे और प्रगतिशील, जो हमारे देश को सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर पाए और बेटर एसोसिएशन कर पाए, ऐसी कंसोर्शियम्स का पार्ट बनना चाहिए। बट एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे। जस्ट बिकॉज वी आर, और इंडिया ने तो ये प्रूव कर भी दिया है, जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई, इंडिया टुक इट्स ओन इंडिपेंडेंट डिसीजंस, तो दैट वे दे आर प्रूविंग इट राइट। और आगे आगे वो यही प्रूव करते रहें, क्योंकि एक बड़ा ही डेलिकेट सा पाथ उनको चलना है। जब रशिया और चाइना क्लोज हो रहे हैं, इंडिया रशिया का भी स्ट्रॉन्ग टाइज है, तो मेरे को लगता है इंडिया इज प्लेइंग इट्स फॉरेन पॉलिसी रोल वेरी वेरी वेल। कांग्रेस की बात करते हैं सर। सुनील जाखड़ और हार्दिक पटेल के हाई प्रोफाइल एग्जिट के बाद कांग्रेस से अब कपिल सिब्बल जी ने भी कांग्रेस से एग्जिट ले लिया है और राज्यसभा इलेक्शंस में नॉमिनेशन भर दिया समाजवादी पार्टी से। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कपिल सिब्बल हैं या जो नेता हैं, ये कभी ग्राउंड लेवल के नेता नहीं थे। दे वर नॉट पॉपुलर ग्राउंड लेवल नेताज फॉर कांग्रेस। और ही वॉज अ लॉयर, ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट लॉयर, और बिकॉज ऑफ हिज क्लोजनेस विद द गांधी फैमिली ही वॉज मेड अ सीनियर लीडर। और उन्होंने उस गांधी फैमिली की क्लोजनेस के बहुत प्रिविलेजेस लिए। वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, HRD मिनिस्टर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स पे रहे हैं। और आज उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस का अब कोई खास फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा और वो जल्दी पावर में आते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो गांधी परिवार पे फोकस है पूरा कांग्रेस का, ऑफ कोर्स ये कांग्रेस के लिए गलत है। तो इसको आप चाहे आप ये देख सकते हैं, अवसरवाद देख सकते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के बिहाफ पे आप मेंबर पार्लियामेंट बन के उसकी प्रिविलेजेस ले लो। यहाँ पे आप इसको उनका जेन्युइन पर्सपेक्टिव भी देख सकते हैं जी, कांग्रेस में अब एक्चुअल में जो भी नेता उनकी बात सुनी नहीं जाती, पर ये वो ग्राउंड लेवल वाले नेता नहीं है। ये वही नेता हैं जिनकी प्रॉक्सिमिटी थी, जो उनके केस लड़ते थे और उसकी वजह से उनको बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस मिली। तो मेरे को नहीं लगता ग्राउंड लेवल पे, हालांकि क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम था, वो सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, तो जो ऑप्टिक्स हैं उसमें तो ये नज़र आता है कि कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता छोड़ रहे हैं। पर सुनील जाखड़ जैसे नेता एक अलग कैलिबर के नेता थे। वो 3 जनरेशन के इन डेप्थ वाले नेता थे, जिनको, जो पंजाब में उनकी पकड़ मजबूत थी। जब बीजेपी की वेव थी, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को गुरदासपुर में हराया। तो वो एक अलग तरह के नेता थे। जेन्युइन लॉस है वो कांग्रेस, वो जेन्युइन लॉस है। इसको आप ग्राउंड लेवल पे, कपिल सिब्बल वाज मोर ऑफ एन एडवाइजर, ही वॉज क्लोज टू वन फैमिली एंड ही टुक प्रिविलेजेस ऑफ दैट। तो ये एक ऑफ कोर्स, बट स्टिल बात ये भी सही है कि कांग्रेस के ज़्यादातर नेता उसको छोड़ के जा रहे हैं। और 2024 और उसके पैरेलल साथ में जो राहुल गांधी जी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पूरी दुनिया में घूमते घूमते, वो कांग्रेस की कोई हेल्प नहीं हो रही है। तो मेरे को लगता है उनको इंट्रोस्पेक्शन और एक नए सेट ऑफ एडवाइजर्स रखने की ज़रूरत है। कपिल सिब्बल जी का ये भी स्टेटमेंट रहा है कि दे वांट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन व्हिच दे कैन अपोज बीजेपी गवर्नमेंट एंड ही विल वर्क ऑन इट। बीजेपी सपोर्ट दे देती तो बीजेपी को वो भी सपोर्ट देते, अगर बीजेपी उनको नॉमिनेट कर देती। तो वो अपोज तो अभी भी कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के थ्रू करना चाहते हैं। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि भाई इस वक्त सारी ओपोजिशन पार्टी का फोकस बीजेपी है, और मेरा ये मानना है कि अब अगले 20-25 साल तक बीजेपी विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी। मैं ये नहीं कह रहा कि 20-25 साल तक वो पावर में रहेंगे, पर किसी ना किसी स्टेट में, और ज़्यादातर पॉलिटिक्स इंडिया की बीजेपी के आसपास ही घूमेगी। और बीजेपी काफ़ी स्टेट्स में जहाँ पे अभी इस वक्त तक उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, धीरे धीरे वो एक मेजर फोर्स बनेगी। शायद पावर में ना आए, पर सेकेंड फोर्स, मेजर ओपोजिशन बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो एक जगरनॉट है, जो इलेक्टोरल जगरनॉट है, वो हर जगह पे अपने ऑफिसेस बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो चल रहे हैं, बड़े प्लान तरीके से वो चल रहे हैं, जिससे वो हर एरिया को समझ के, पकड़ के वहाँ पे अपनी डेप्थ बना रहे हैं। तो एक नेशनलिस्ट जो माइंडसेट है उनका, वो उनको हर जगह पे रेलेवेंट कर रहा है। ख़ास तौर पे उनके 3 मेजर हैं, एक नेशनलिस्ट एजेंडा है उनका, एक उनका डेवलपमेंट एजेंडा है, और तीसरा ऑफ कोर्स बेसिकली उनका जो मेजॉरिटेरियन सपोर्ट जो उनको मिल जाती है हिंदू कम्युनिटी से, हमेशा उनको एक मेजर सपोर्ट मिलती रही है। अब चौथी चीज़ जो वो कर रहे हैं,
हालांकि ओपोजिशन कह रही है कि वो नहीं कर रहे, पर पिछले कुछ टाइम पे उन्होंने काफ़ी पॉपुलिस्ट मूव्स किए हैं। जो बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिलीज थी उनके घर तक राशन पहुंचाना, कोरोना के टाइम पे एक नया सेट ऑफ वोटर बेस उनको मिला है। तो ये चीज़ बीजेपी को अगले 20-25 सालों तक, जैसे 40-50 साल तक कांग्रेस वाज एट द सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, अब वो अगले 25 साल बीजेपी के होंगे। जी, आखिरी सवाल सर पैंडेमिक ने ऑलरेडी कॉम्प्लिकेट कर दिया था ग्लोबल एफर्ट्स को टू रिड्यूस फेमाइन एंड फूड इनसिक्योरिटी, और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने इस चीज़ को इंटेंसिफाई कर दिया। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी आउटलुक या अप्रोच क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, एक एस्टिमेट ये कहता है कि बाय 2050 अगर ये ना भी वॉर हो, ना कुछ भी ना हो, जो पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्टिविटी को 60% बढ़ना पड़ेगा। न्यू फूड बास्केट्स हैव टू बी क्रिएटेड। अभी तक यूक्रेन था, प्रोडक्टिविटी हैज़ टू बी इन्हांस्ड, और इसको थोड़ा सा हमें ऑर्गेनिक केमिकल फ्री फार्मिंग की ज़रूरत है, अदरवाइज उसके भी लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत हैं। दूसरा, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है वो काफ़ी हमारी प्रोडक्टिव एरियाज़ को खेती से हटा देगा। अब हम पंजाब की बात कर लें, ये माना जा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 30 साल बाद हम एक डेजर्ट बन जाएंगे जी। तो ये बहुत ही मेजर फंडामेंटल चैलेंजेस हैं दुनिया के सामने, कि अगर फूड सिक्योरिटी ही नहीं है तो बेसिकली बाकी सारी तरक्की के पाथ रुक जाएंगे। जब लोग भूखे मरेंगे तो फिर ऐसे पीसफुल तरक्की नहीं हो पाएगी और दुनिया बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में जा सकती है। वाटर स्कैर्सिटी, फूड स्कैर्सिटी पे सारी गवर्नमेंट्स को बैठ के काम करने की ज़रूरत है। एक नेचुरल तरीके से प्रोडक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है और नई टेक्नोलॉजीज लाने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो मीट कंजम्पशन है, जो पूरी दुनिया की, ये अगेन साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस वो जानवर बीफ वगैरह के लिए जो बनाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा छोड़ते हैं। वो एक पोल्यूशन का मेजर सोर्स है। आपको 1 kg मीट खाने के लिए, अगर मैं बीफ की बात करूं, तो यू हैव टू यूज़ लॉट मोर रिसोर्सेज, वाटर, ग्रेन, सारा कुछ, तो आप 1 kg मीट बना पाते हैं। तो अगर ज़्यादा पॉपुलेशन, और आजकल ये ट्रेंड आ भी रहा है, वेजिटेरियन ऑप्शंस की तरफ चला जाए तो अपने आप फूड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप पहले तो 100 किलो ग्रेन किसी जानवर को खिलाएंगे तो वो अल्टीमेटली 1 kg मीट शायद ट्रांसफ़र उससे बनेगा जी। और दूसरा, उसके ऊपर ग्रीन हाउसेस गैसेस जो बन रही हैं, तो वो एक मेजर पोल्यूशन का रीजन है हमारी ईटिंग हैबिट्स। तो दुनिया को भी, लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी है। सरकारें करें, सारा कुछ सरकारें नहीं कर सकती। जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको भी बैलेंस करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा सारे वेजिटेरियन बन जाएं, मैं कह रहा हूँ ये बैलेंस्ड हो जाए। आई हैव नो क्वाम्स अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियन पीपल, इट इज़ देयर चॉइस वट एवर दे वॉन्ट टू ईट। बट उसका जो रेशो, और स्पेशली अगेन इन वेस्टर्न कंट्रीज, उस रेशो को चेंज करने की जरूरत है। वी हैव टू मूव मोर टुवर्ड्स एक बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है। सर, फूड सिक्योरिटी पे एक और पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोयाबीन ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी हटाई है। देखो, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इन्फ्लेशन की जो मार पूरे देश में है और पूरी दुनिया पे, इनफैक्ट मैं एक तरह से देखूं तो इंडिया इज़ रिलेटिवली वेल प्रोटेक्टेड। बट हमारा एडिबल ऑयल, कोई भी तरह का ऑयल, चाहे हमारी गाड़ी में पड़ना हो, चाहे हमारे अंदर ऑयल जाना हो, वो सारा ज़्यादातर इम्पोर्टेड होता है। तो सोयाबीन ऑयल पे इम्पोर्ट ड्यूटी, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स इन दी वर्ल्ड, तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी इस वक्त गवर्नमेंट ने हटाई है ताकि लोगों के ऊपर महंगाई का असर कम हो। पर ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में हमें अपनी डिपेंडेंसीज, जैसे मैं फूड हैबिट्स की बात कर रहा था, इसी तरह से प्रोडक्टिविटी की हम बात कर रहे थे कि हम कैसे और डिवर्सिफाइड तरीके से, और आजकल तो इतना कटिंग एज चीज़ें आ रही हैं, लैब के अंदर यू कैन ग्रो सो मच ऑफ प्रोटीन, और आप वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हो। इंडिया में रिलेटिवली, हालांकि हम बहुत बड़ा देश हैं और हमारे पास एरेबल एरिया भी बहुत ज़्यादा है, पर जो हमारी प्रोडक्टिविटी है इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। पर एकड़ जो हमारी प्रोडक्शन है चाइना से शायद 1/4 हो, ग्लोबल एवरेजेस से भी नीचे है। तो छोटे छोटे देश भी हमसे ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से खेती करते हैं। उसका रीज़न है कि जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, हम हाइब्रिड सीड्स नहीं यूज़ होने देते, राइट। उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो कंपनीज हाईली प्रोडक्टिव सीड्स बनाती हैं, हमारे यहाँ पे कानून उनको उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सही प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। तो ये सारी चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली हम फूड प्रॉब्लम को, देखो, इंसान एक ऐसा जानवर है, जीव है, जो अगर किसी भी तरफ अपना दिमाग लगाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देता है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में सिंसेरिटी के साथ सोचेंगे तो हम अपनी अगली जनरेशन्स को एक हेल्थी दुनिया और
एक भरपूर दुनिया देके जाएंगे। हमें मिली है, आज से 200-300 साल पहले खाने पीने की बहुत कमी होती थी और साइंस की तरक्की से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और आज हम 7 बिलियन लोगों को फूड दे पा रहे हैं। पर हमने वो जो तरक्की जिस तरीके से हासिल की, अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो सस्टेनेबल नहीं है। तो अब हमें अपने जो 200-300-2-3 हज़ार साल पुराने वंशज थे, उनकी जो ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीका था उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अपनी नीड्स को, सबसे बेसिकली तो हमें अपनी नीड्स को, अपनी हैबिट्स को, हम किस तरह से कंजम्पशन करते हैं उस पर भी ध्यान देना है और किस तरह से खाना उगाते हैं उस पर भी ध्यान देना है। तो अल्टीमेटली आई थिंक वी कैन होप फॉर वी कैन एटलीस्ट विश फॉर अ हेल्दियर, happier or sustainable environment. Thank you so much for your views, sir. So stay connected for such deep and meaningful insights, and do not forget to subscribe to our channel and download our app. Thank you.